Hello and welcome students once again to this ICSE revision series in biology. So मैं हूँ Mrs. रंजना दुबे और हम लोगों ने already ये chapter number 1 start कर दिया है. Chapter का नाम है Cell. We all know this chapter and हमारे 2 lectures already हो भी चुके हैं. इन 2 lectures में हमने क्या किया? इन 2 lectures में we talked about the contribution of various scientists and then we also talked about the overview of a cell हमने बात की and then we started with explaining about a little bit about the plasma membrane, the outermost layer of the cell जो कि हर तरह के cell में पाया जाता है and we also talked about nucleus. Nucleus के जो 4 part होते हैं. Here are the 4 parts which are written down, children. So we talked about the nuclear membrane. If you remember, can you tell me what is the other name of nuclear membrane? इसको हमने बोला था कि this is called as karyotheca or the nuclear membrane. Then we talked about nucleoli and its function, जैसे कि ये basically तुम्हारा ribosome synthesize करती है, which in turn do the protein synthesis. And then we talk about chromatin fibers, जो कि long धागे जैसे होते हैं, which condense and they only form the chromosomes, जिनके अंदर हमारा DNA और उस DNA के functional units को हम क्या कहते हैं बच्चों? We call those functional units as genes. And जो अंदर का जो cytoplasm का वो material which is present inside the nucleus is called as the nucleoplasm. So we had covered the nucleus and today we would be starting with the other cell organelles which you find inside the cytoplasm, and we would be starting with today, children, endoplasmic reticulum. So the cell organelles that I have brought and presumably मैं मान के चल रही हूँ कि मैं ये खत्म कर दूंगी endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosomes or vacuoles. Okay, so let us start with the first organelle, children, which is the endoplasmic reticulum. ये शब्द है जो इसका meaning, what is its meaning, children? So endo means obviously inside, plasmic means related to the cytoplasm of the cell, and reticulum is a kind of a network. It's a kind of a network, या हिंदी में इसे जाल भी कहते हैं. It's a kind of a net. A net, so it's a huge network, a huge jal inside the cytoplasm. Jal of what? Jal of membranes. Okay, so and what are the shape of those membranes? So the membranes would be these 3 in shape. So हम start करते हैं बच्चों. First point, let us see. At places, it is connected with the plasma membrane as well as nuclear envelope. Take a look at this diagram, children. ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, this is nothing but our endoplasmic reticulum. ये जो है structure, what is this, children? This is the nuclear membrane. Nuclear membrane. So इस nuclear membrane के continuation में, in the continuation of the nuclear membrane, suppose if this is the nuclear membrane, child, if this is the nuclear membrane, okay, ये अगर मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हूं जो कि ऐसे कवर हो जाएगा, तो इसके कंटिन्यूएशन में there are some tubular structures, membranous tubular structures, ठीक है, ऐसे फिर हम और बना सकते हैं इसे. इस तरह के membranous structures को हम क्या कहते हैं बच्चों? We call it as endoplasmic reticulum. Okay, अच्छा, so its membrane or its lining starts with the, or it is in continuation with the membrane of the nucleus. ठीक है, अब ये कहाँ पाया? Obviously it is there in the cytoplasm, और मतलब सेल के अंदर पाया जाता है, और ये it is spread out in such a way that it forms a huge extensive network. तो जब ये huge extensive network की तरफ फैला हुआ होता है सेल में, तो एक kind of cell को skeleton का भी provide करता है, like it kind of gives a kind of a framework to the cell. It kind of forms as a cytoskeleton to the cell. तो ये उसका एक function हो गया. अभी हम उसके structure की बात कर लेते हैं. दूसरी बात, it is abundantly present. अब हम इसकी location की बात करें. Structure तो अभी हम और देखेंगे. अभी हमने इतना देखा कि ये nuclear membrane के continuation में extend करती है towards the cytoplasm. इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? इसका ये हमने देखा, एक मेम्ब्रेन की बनी हुई सैक्स होती है, और ये सैक्स 3 तरह के हो सकती हैं. पहला जो आपको दिख रहा है, दिस कॉल्ड एज सिस्टर्ने.
then it is in the form of this branched kind of tubes which are called as tubules, और जो ब्रांच नहीं सर्कुलर फॉर्म में जो ट्यूब्स होती हैं उनको हम कहते हैं वेसिकल्स। तो इस तरह के थ्री membranous structures in continuation with the nuclear membrane actually forms the endoplasmic reticulum. Okay, now where it is found? It is found in those cells primarily जिनका काम प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। क्यों ये प्रोटीन सिंथेसाइज करवाने वाली जगहों पे पाए जाते हैं? क्योंकि you can see this rough patch, ये जो circles आपको दिख रहे हैं, what is this? This is nothing but children ribosomes. What are they? Ribosomes. Ribosomes are what? These are the structures which are present even inside the cell and also on the endoplasmic reticulum, and they are primarily meant for the synthesis of proteins. So since I have taken this particular slide क्योंकि इसमें आपको और बेहतर तरीके से नजर आएगा, the ribosomes are present in these membranous folds which you can see. So when the ribosomes are associated with these membranous structures or reticulum जिसे हम कहते हैं endoplasmic reticulum, then this type of endoplasmic reticulum is called as rough endoplasmic reticulum. It has become rough because of the association of ribosomes. क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स है इसलिए हम इन्हें रफ कहते हैं। अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि ये जो फोल्ड्स हैं बच्चों, इनके अंदर ये स्पेस जो है इसे हम कहते हैं ल्यूमेन। इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन। सो दिस इज द स्पेस वन, जो साइटोप्लाज्म एक बाहर भी होता है और इसके अंदर ये ल्यूमेन में भी ये खाली जगह जो है यहाँ भी है। ओके, देन कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, that it is present in these three structural forms. सिस्टर्नी कब होता है? सिस्टर्नी जब हम ऐसे फ्लैट ऐसे बोलते हैं ट्यूब्स like structure, fold like structure, then it is called as cisternae. और जब इसमें branching हो जाएगी, as you can see here, then this is called as tubules. Then and जब ये spherical shape में होंगे तब ये कहलाते हैं vesicles. Okay, so they appear in three different forms. Next, so where are they present? Since they are associated with ribosomes, so they will be present in the cells which do lot of protein synthesis. जो cells बहुत protein बना रहे हैं उनमें ये पाया जाएगा, जैसे कि हमारे pancreas हो गए, ठीक है, जैसे कि हमारे muscles हो गए। Now muscle cells में देखो, इन्हें हम कहते हैं sarcoplasmic reticulum. Inside the muscle cells, what are they also called as? Sarcoplasmic reticulum. और इनसाइड द मसल्स जहां इनको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वहां पे ये क्या करते हैं? ये कैल्शियम स्टोर करते हैं और जब जरूरत होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, सो दे विल रिलीज द कैल्शियम आयंस. अच्छा, दे आर आल्सो कॉल्ड एज नाइसिल ग्रैन्यूल्स या निसिल ग्रैन्यूल्स. इनको इस नाम से भी जाना जाता है. लेट मी राइट इट हियर. Nisil. They are also called as nisil granule. कहाँ पे? न्यूरॉन के सेल बॉडी में. न्यूरॉन के सेल बॉडी में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम कहते हैं नाइसिल ग्रैन्यूल. और ये हमारे रेटिना में भी पाया जाता है. वहां भी हम इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहते हैं, बल्कि हम इसे माइलॉइड बॉडीज भी कहते हैं, जो कि हमारा पिगमेंट माइग्रेशन और में हेल्पफुल होता है. So that all that detail is not required now, but you will definitely, or you might have already come across the word sarcoplasmic reticulum, and you will be coming across the nisil granules जब हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, when you will be studying about the structure of a nerve cell. ठीक है? Next point is talking about the function. Some of the proteins and the lipids which are synthesized in the cell with the help of endoplasmic reticulum. So हम कह सकते हैं कि endoplasmic reticulum का function है प्रोटीन सिंथेसाइज करना और लिपिड भी सिंथेसाइज करना, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है. Now children, go back to the structure. ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसमें हमने इसकी बात तो कर ली. आपको यहाँ जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपको कैसा दिख रहा है? दिस इज काइंड ऑफ अ ये एक ट्यूब्यूलर जैसा स्ट्रक्चर है. तो
इसमें आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं क्या? नो, यू कैन नॉट सी एनी राइबोसोम्स. सो दिस पार्ट, ये जो पीछे वाला पार्ट जो है, ये दिस विल बी टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये होगा. तो कहने का मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा इज इन कंटिन्यूएशन विद द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, और दूसरा हिस्सा विल बी इन कंटिन्यूएशन विद द बाउंड्री ऑफ द सेल, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. और उन जगहों पे हम देखते हैं कि राइबोसोम्स आर नॉट present on the endoplasmic reticulum. So that part of endoplasmic reticulum is called as smooth endoplasmic reticulum. I'm changing the slide. आप देखो यहाँ पे this is called as the smooth endoplasmic reticulum, और ये कहाँ है तुम्हारा? ये सेल की बाउंड्री की तरफ है. तो rough endoplasmic reticulum is more towards the nucleus, and you will find smooth endoplasmic reticulum. What is smooth endoplasmic reticulum? The endoplasmic reticulum which does not have ribosomes on it. तो ये कहाँ रहेगा? टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ द सेल, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो चूंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं है बच्चों, तो विल इट आल्सो बी सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स? हमने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पाया जाता है जहाँ पे प्रोटीन्स बहुत बनते हैं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो राइबोसोम्स है नहीं, तो क्या वो भी प्रोटीन्स बना रहे हैं? नो चिल्ड्रन, दे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली इट इज इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. ये लिपिड्स बनाने के काम आता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं टुगेदर, हम कह सकते हैं कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स और लिपिड्स पाए जाते हैं या जो जरूरत होती है बनने की, उसका निर्माण हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है, बिकॉज इट इज प्रिपेयरिंग लिपिड्स ऑल्सो. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रिपेयरिंग लिपिड्स, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रिपेयरिंग प्रोटीन्स. ठीक है. अच्छा, राइबोसोम्स जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो है ही एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो साइटोप्लाज्म में यूं भी पाए जाते हैं, मतलब यूं इज नॉर्मली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. So those ribosomes, there also proteins would be synthesized by those ribosomes, but those ribosomes, those proteins जो होंगे वो सेल के अंदर ही यूज हो जाएंगे. ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी, that will be sent out of the cell. जहां जहां जरूरत होगी प्रोटीन्स की, that would be packaged and modified and that would be moved out of the cell. ठीक है, अब हम फंक्शन वन बाय वन देख लेते हैं. The network of endoplasmic reticulum, it separates the cytoplasm of the cell into several small compartments. Okay, it does a kind of compartmentalization of the cell. Next is it gives mechanical support. मैंने बोला कि चूंकि ये बहुत एक जाल की तरह फैला हुआ है, तो सेल को भी एक साइटोस्केलेटन का की तरह बांधे रखता है, उसको एक स्केलेटन का फ्रेमवर्क देने की कोशिश करता है. ठीक है. So the endoplasmic reticulum gives mechanical support to the cytoplasm and providing what? A kind of a cytoskeleton to maintain the shape of the cell. Okay, so that's another function. Next, फिर हमने तो बोल ही दिया ये प्रोटीन्स बनाएगा, और जो स्मूथ पार्ट है वो प्रोटीन्स नहीं बल्कि लिपिड्स बनाएगा. So the endoplasmic reticulum offers extensive surface for the synthesis of proteins as well as lipids. Proteins by the rough and lipids by the smooth endoplasmic reticulum. It also helps in the transport materials, especially proteins, from one part of the cell to another or between the cytoplasm and the nucleus. मतलब जहां जहां प्रोटीन की जरूरत है वहां ये प्रोटीन भेजने का एक ट्रांसपोर्ट चैनल का भी ये काम करेगा, फिर चाहे वो सेल के अंदर हो, साइटोप्लाज्म के अंदर हो, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर हो, या फिर सेल के बाहर. ठीक है. Another very important function of the smooth endoplasmic reticulum is that it plays a role in detoxifying many poisons. जो हम इतनी सारी दवाइयां वगैरह खा लेते हैं या ऐसी भी कई चीजें खाते हैं जो कि खानी पड़ती हैं दवाइयां जैसे, या फिर कुछ पॉइजनस होती है, तो everything that we consume has some byproducts. As a result of it, there are some byproducts released. तो उन उसको पूरी तरह से रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी और बॉडी को कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई करना बेसिकली लिवर का काम होता है, जहां पे हम पाते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ग्रेट अबंडेंस. ठीक है, बहुत ज्यादा पाया जाता है इन द लिवर सेल्स. व्हाई? बिकॉज लिवर सेल्स आर प्राइमरली इन्वॉल्वड इन द डिटॉक्सिफिकेशन of the drugs. तो इसीलिए हम देखते हैं कि liver cells of the vertebrate में smooth endoplasmic reticulum बहुत पाया जाता है. So this was little bit about endoplasmic reticulum कि वो एक membrane का जाल है. Yes, और वो तीन तरह के membrane से बना होता है. One is called cisternae, the other is called tubule, and this is called vesicle. ठीक है.
और हम देखते हैं कि it is associated with ribosomes. So wherever it is associated with ribosomes, it is called as a rough endoplasmic reticulum. Where it is not associated with ribosomes, it is called smooth endoplasmic reticulum. यहाँ पे ये लिपिड्स बनाने का काम करता है और यहाँ पे ये रफ में ये प्रोटीन्स बनाने का काम करता है. ये सिर्फ ना बनाने का काम करता है प्रोटीन्स, बल्कि उनको चैनलाइज करने का भी काम करता है इनसाइड द सेल, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस एंड आल्सो आउटसाइड ऑफ द सेल. ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स भी होती है इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, टॉक्सिन्स. डिटॉक्सिफिकेशन का काम, इसीलिए ये उन जगहों पे ज्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है ज्यादा, तो वहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ज्यादा पाया जाएगा. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ जहाँ प्रोटीन्स की ज्यादा जरूरत है वहाँ आपको ज्यादा पाया जाएगा. मसल सेल्स में वो कैल्शियम को स्टोर करने का भी काम कर रहे हैं. सो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सिंगल मेम्ब्रेन है बच्चों. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन मेम्ब्रेन. सो दिस इज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इसके पहले जो हमने न्यूक्लियस की पढ़ाई की थी, वी स्टडीड दैट न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. ठीक है, न्यूक्लियस वाज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. एंड नेक्स्ट वी सॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ ही वी विल बी टेकिंग अप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी और फिर लाइसोसोम्स वैक्यूल्स. नाउ हम इन चारों को एक साथ कहते हैं या इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भी पार्ट कहते हैं. क्यों? क्योंकि इन चारों के फंक्शंस बहुत ज्यादा एक दूसरे मतलब आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. They are correlated with each other, so therefore probably इसलिए इनको इकट्ठे पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है. तो उसी सीरीज में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की सीरीज में, आफ्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ते हैं गोल्जी अपैरेटस. ठीक है, या गोल्जी बॉडी भी हम इसे कहते हैं. ठीक है, अच्छा ये कहाँ पाया जाता है? यूजुअली हम इसे देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही आपको पाया जाएगा. ठीक है, और इसमें भी आपको, आप देख रहे हैं कि इस तरह के मेम्ब्रेनस जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. इस तरह के मेम्ब्रेनस सिस्टर्ने जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. ठीक है, और ये वेसिकल्स भी दिख रहे हैं आपको. यस, तो दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिस्टर्ने, वेसिकल्स, जैसा कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था. Now I'll go back once again to the endoplasmic reticulum. Children, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हैं और ठीक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आपको ये सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी बॉडी आपको मिल जाएगा. ठीक है, बीच बीच में वेसिकल्स आपको दिखेंगे. ठीक है, ठीक है. तो हमने क्या बोला बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और लिपिड्स बना रहा है, और वो प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या होंगे बच्चा कि वो जाएंगे कहाँ? गोल्जी बॉडी. तो वो कैसे जाएंगे गोल्जी बॉडी में? तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि वेसिकल्स जैसा भी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है. तो यहाँ पे वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे. इन वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर में क्या जाएगा? द प्रोटीन प्रिपेयर्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द लिपिड प्रिपेयर्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर वो यहाँ से घुस जाएगा. ये जो है they will go into the where? They will go into the Golgi body. So vesicles will carry the proteins or the lipids prepared inside the endoplasmic reticulum and they will bud off, एक काइंड ऑफ पिंच ऑफ हो जाएंगे फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अटैच हो जाएंगे मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्जी बॉडी से. तो आप देखोगे कि जैसे कि ये जो है सिस्टर्ने की जो ये जो लाइनिंग है, इसमें आपके ये वेसिकल्स जो है ये आके अटैच हो जाएंगे. जो वेसिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं. इन वेसिकल्स के अंदर क्या होगा? इन वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मिलके बनाया है, वो सारे मटेरियल को वेसिकल्स कैरी करके दे विल गेट अटैच टू द गोल्जी बॉडी. तो ये देखो, ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है. मतलब कहाँ से आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और अपने साथ प्रोटीन्स और लिपिड्स लेकर आ रहा है. प्रोटीन्स और
लिपिड्स लेकर आ रहा है, एंड प्रोटीन्स और लिपिड्स लाने के बाद दे विल गो एंड दे विल अटैच टू द दिस सिस्टर्ने या जो ट्यूब्यूल्स आप देख रहे हैं विच मेक अप द गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस तरफ एक फेस है और इस इधर भी एक फेस है, तो जिस फेस पे गोल्जी बॉडी is coming from the endoplasm, the vesicle is coming from the endoplasmic reticulum, उस फेस को हम कहते हैं सिस फेस। ये लिखा है ना सिस फेस, सिस फेस भी इसे कहते हैं और फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। ये कॉन्वेक्स होता है और इसे सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स इस तरफ से आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और फिर वो अंदर जा रहे हैं गोल्जी बॉडी के। अब क्यों जा रहे हैं गोल्जी बॉडी के? तो ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं प्रोटीन्स और लिपिड्स को और प्रोसेस होना है, उस पर और काम होगा, मतलब उसकी और मॉडिफिकेशन होगी, उसकी और पैकेजिंग होगी, उसको और रिफाइन किया जाएगा और फिर उसे सेल की जरूरतों के लिए यहाँ वहां जहां भी जरूरत है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सो लेट अस जस्ट गिव अ रीडिंग टू व्हाट इज रिटन। It also looks like stacks of flattened membranes। तो आप देख रहे हैं कि थैलियां एक के ऊपर एक जो पड़ी हुई है, ये बिल्कुल उस जैसा देखने में लग रहा है। इसमें भी सिस्टर्ने और वेसिकल जैसी हमें चीजें दिख रही हैं मेम्ब्रेन की, जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था। Then it is a membranous structure which is formed of interconnected stacks and those stacks are called as cisternae, जैसे कि हमने ER में बोला था। Besides cisternae, the complex will also bear vacuoles and a cluster of small vesicles। ठीक है, अच्छा, अब प्लांट सेल्स में बच्चों, ना दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे गोल्जी अपैरेटस हो, दिस इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, मतलब सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स, सब में ये पाए जाते हैं, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। लेकिन हम प्लांट्स में क्या देखते हैं, दैट इट इज, इसको अलग नाम दिया जाता है डिक्टियोसोम्स। क्यों? उसमें जो ये जो है ना, ये अलग अलग ऐसे स्कैटर्ड होते हैं इनसाइड। जो ये जो सिस्टर्ने जैसा स्ट्रक्चर है ना, दिस इज स्कैटर्ड हियर एंड देयर एज एन अनकनेक्टेड सब यूनिट्स, एज अनकनेक्टेड सब यूनिट ये स्कैटर्ड होते हैं, तो इसको प्लांट बॉडी में डिक्टियोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि एक सिस फेस है जहां पे वेसिकल्स are coming from endoplasmic reticulum and joining into the Golgi apparatus, और कुछ वेसिकल्स बाहर भी निकल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे इन वेसिकल्स के अंदर भी कुछ होगा और कुछ खास का, और बीच में भी कुछ हुआ होगा। तो क्या ये जो बाहर वाला साइड है इसे बोलते हैं बच्चों ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस, मतलब यहाँ पे मैच्योर हो गया प्रोटीन और लिपिड जो आया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड चिल्ड्रन, यहाँ पे हम फंक्शन देखने की कोशिश करते हैं। गोल्जी apparatus, what does it do? It helps in the secretion of mucus, enzymes and hormones। तो हम कह सकते हैं कि जहां भी हार्मोन बन रहा है या एंजाइम्स बन रहे हैं, देखो ये काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हुआ था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हुआ था कि वहां प्रोटीन्स बनी थी, वो प्रोटीन्स जो कि एंजाइम का रोल प्ले करेंगी, और लिपिड्स वो लिपिड्स जो हार्मोन्स का रोल प्ले करेंगे। कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो लिपिड्स के बने होते हैं, फैट के बने होते हैं। तो इन दोनों का निर्माण कुछ हद तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है और गोल्जी बॉडी भी करती है। ठीक है, जो तुम्हारे गोनाड्स के जो हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉइडल होते हैं और इंसुलिन वगैरह जो है वो प्रोटीनेशियस हार्मोन है, हाइपोथैलेमस के प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं। तो इन सब का निर्माण कुछ हद तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कर रही है, गोल्जी बॉडी भी कर रही है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में आ गया, ये क्वेश्चन में आ गया, तो हम सिंथेसिस इनका हम बोलेंगे बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पैकेजिंग या मॉडिफिकेशन हम बोलेंगे गोल्जी बॉडी। ठीक है, फिर ये बनने के बाद सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनने के बाद, क्योंकि ये प्राइमरीली प्रोटीन्स और लिपिड्स के होते हैं, क्या होता है बच्चों, द मटेरियल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हुई थी, दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी apparatus। तो जो प्रोटीन बना और लिपिड बना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो सेल के अंदर और सेल के बाहर जाएगा क्योंकि वहां जरूरत है, लेकिन जाने से पहले वो गोल्जी apparatus के वाया जाएगा, के थ्रू जाएगा, क्योंकि वहां पे
उनको एक काइंड ऑफ हॉल्ट मिलेगा जहां पे कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाएगा और फिर उसको भेज दिया जाएगा बाहर। एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी चेक इन हम कह सकते हैं कि वहां पे आपकी सारी चीजें देखी जाएंगी, अगर कुछ गलत है, इधर है उधर है, तो वो हटा दिया जाएगा, कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए जाएंगे, पैकेजिंग होगी और फिर उनको आगे भेजा जाएगा। सो ऑल द प्रोटीन्स, लिपिड्स, हार्मोन्स जो भी हैं बन रहे हैं वो go into the body and outside the cell or outside the or into the cytoplasm, they go via the Golgi body. तो गोल्जी बॉडी फिर क्या कर रही है, अपने अंदर उनको रख रही है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है प्रोटीन और लिपिड, उसको क्या कर रही है, उसको वो स्टोर भी करती है, मॉडिफाई भी करती है, पैकेज भी करती है। ठीक है, अब जैसे प्रोटीन आया, ठीक है, ये प्रोटीन आया, तो इस प्रोटीन के ऊपर ये क्या करेगी, एक कार्बोहाइड्रेट अटैच कर देगी और उस प्रोटीन को ये बना देगी ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब ऐसे ही किसी प्रोटीन के ऊपर ये कुछ लिपिड्स अटैच कर देगी, तो ये कहलाएंगे क्या, ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएंगे। ठीक है, और कुछ लिपिड्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए उसको ये मॉडिफाई करके उसमें कुछ प्रोटीन ऐड कर देगी। ठीक है, या और उनको मॉडिफाई कर देगी फर्दर। ठीक है, तो ये सारे काम हो रहे हैं, फर्दर मॉडिफिकेशन जो हो रहा है दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द गोल्जी apparatus. In some cases, Golgi apparatus also helps in the manufacture of complex sugars. मैंने बोला था ना ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। ठीक है, नॉर्मल शुगर था तो उसमें प्रोटीन आके अटैच हो गई। ठीक है, फ्रॉम सिंपल शुगर्स यू गेट कॉम्प्लेक्स शुगर्स। The Golgi apparatus is also helpful in the formation of lysosomes. तो ये जो lysosomes एक ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, जिसके बारे में हम अभी इसके आगे पढ़ेंगे, that actually pinches out from the body of the Golgi body. तो ये जो वेसिकल्स आपको दिख रहे हैं गोल गोल, ये जो मैच्योरिंग फेज से जो बाहर निकलते हैं, तो यही वेसिकल्स जो होते हैं ये कहलाते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, ये कहलाते हैं लाइसोसोम्स। इनमें स्पेशल टाइप के एंजाइम्स भरे होते हैं, तब इनको लाइसोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, और जब इनमें प्रोटीन्स या लिपिड्स पाए जाते हैं तो वो पिंच ऑफ कर जाएंगे और जहां जहां सेल को जरूरत है वो वहां लेके चला जाएगा वेसिकल। और जब इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भर जाएंगे तो ये कहलाते हैं लाइसोसोम्स। और इस तरह के वेसिकल्स भी कहां से निकल रहे हैं, फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्जी बॉडी, फ्रॉम दिस फेज दैट इज ट्रांस फेज और मैच्योरिंग फेज। ये ट्रांस फेज और मैच्योरिंग फेज। ठीक है, फिर इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इन्हीं से ये बना रहे हैं, क्योंकि मॉडिफाई कर रहे हैं प्रोटीन्स को, लिपिड्स को बना रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, मिडिल लैमेला जो होता है, जो अपने प्लांट सेल में पड़ा है, उसका भी डिपोजिशन गोल्जी apparatus ही कर रही है। तो ये सारे थे कुछ फंक्शंस ऑफ द गोल्जी apparatus. It is similar to endoplasmic reticulum except that यहाँ पे further packaging modification हो रही है, storing हो रही है, ये lysosomes को pinch off कर रहा है या बना रहा है। ठीक है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, सो मेन आपको ये याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली आप गोल्जी बॉडी से ही एसोसिएट करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं करेंगे। लाइसोसोम्स भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं करेंगे, बल्कि गोल्जी बॉडी से करेंगे। Now coming to the next organ, lysosomes. अभी हमने पढ़ा कि ये गोल्जी बॉडी से पिंच ऑफ करके एक वेसिकल्स जो होते हैं, जो गोल्जी बॉडी का एक पार्ट होते हैं, उसके स्ट्रक्चर का एक पार्ट होते हैं, वो जब मैच्योरिंग फेज से बाहर निकलता है और अगर उसमें कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, कौन तरह के एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, तो उन वेसिकल्स को हम लाइसोसोम्स कहते हैं। Now they were discovered by Christian D. Dewey. You have to remember this, children. ठीक है, ये मेम्ब्रेन के सैक्स, सिंगल मेम्ब्रेन के बने हुए हैं ये सैक्स। ये कहाँ से निकल रहे हैं, गोल्जी बॉडी से निकल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें कई तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, मतलब कि पानी, कई तरह के एंजाइम्स हैं जो पानी के वाया अपना काम कर रहे हैं, मतलब पानी दे के बाय हेल्प ऑफ वाटर दे कैरी आउट देयर फंक्शंस। और किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह के एंजाइम्स हैं इसमें, ये आप इस पॉइंट में आप देखेंगे कि क्या क्या एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है। सेकेंड लास्ट पॉइंट चिल्ड्रन, वो एंजाइम्स जो फॉस्फेट को
डाइजेस्ट करेगी, उन्हें फॉस्फेटेजेस बोलेंगे। सल्फेट को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स होती हैं जिन्हें सल्फेटेजेस बोलते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स होती हैं लाइसोसोम्स के अंदर जिन्हें प्रोटीएजेस बोलेंगे। न्यूक्लिक एसिड को भी यानी डीएनए आरएनए को भी डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लिएजेस। देन लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं लाइपेजेस, और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं जिनको हम ग्लाइकोसिडेस या कार्बोहाइड्रेजेस भी कहते हैं। चिल्ड्रन, all the enzymes are ending with the suffix ase. देखो ase मतलब ase अगर किसी में लिखा हुआ है as suffix, then you have to understand that this is a enzyme that we are talking about. So the enzymes which are present in the lysosomes, inside the membranes of the lysosomes, are of various nature. They have the capacity to digest phosphate, sulfate, proteins, lipids, carbohydrates, न्यूक्लिक एसिड, सब कुछ वो डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, बैग्स भी बोलते हैं, स्कैवेंजर भी बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और कचरा उठाने वाला भी हम बोलते हैं। ठीक है, कचरा उठाने वाले भाई जो आते हैं, गाड़ी आती है, ये बेसिकली सेल के कचरा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो ये अभी तो इनके बारे में ही हुआ कि ये कहाँ से बनकर आया, तो ये गोल्जी बॉडी से बनकर आया, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स के नाम मैंने बताए, फॉस्फेटेजेस, सल्फेटेजेस, प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, लाइपेजेस, ग्लाइकोसिडेजेस। ठीक है, और ये करते क्या है, ये भी डाइजेस्ट। लेट मी रीड द फोर्थ पॉइंट चाइल्ड। दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द रफ। अब एंजाइम्स क्या होते हैं बेसिकली, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एनी एंजाइम्स? मैं लिख दूं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। और प्रोटीन कहाँ बनता है, अभी अभी हमने पढ़ा प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है। तो वो एंजाइम्स या प्रोटीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं, विच हैव द कैपेसिटी टू डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो गया, फॉस्फेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं एक सैक के अंदर, एक सिंगल मेम्ब्रेन जैसे सैक के अंदर, वेसिकल के अंदर, और वो कहलाता है लाइसोसोम्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट रिमेंबर ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ओके, The last point, these enzymes are also called as acid hydrolases. इनको acid hydrolases भी कहते हैं क्योंकि इन enzymes के action का medium is acidic. We should know that enzymes are nothing but biological catalysts. What are enzymes? They are nothing but वो catalysts जो कि living systems में operate करते हैं, जिनको कि हम biological catalysts बोलते हैं। तो catalysts एक optimum range पे ही काम करते हैं। They will act, they will have a particular temperature on which they are functional. They will have a particular pH on which they are functional. So they are functional in the acidic medium. इसीलिए इनको acidic hydrolases भी कहते हैं। Low pH approximately 4 से 5 के आसपास ही ये काम करते हैं। ठीक है, because they function in an acidic medium, so that is why they are called as acid hydrolases. तो ये करते क्या है बच्चों, हमने बोल दिया ये सुसाइडल बैग्स का काम कर रहे हैं, स्कैवेंजर का भी काम। तो जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस तुम्हारी बॉडी में आई, ठीक है, तो हमारे बॉडी में कुछ WBCs होते हैं, स्पेशल तरह के WBCs, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए। तो ये मैक्रोफेजेस, जैसे कि ये मैक्रोफेज की बॉडी हो गई, ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया हो गया। तो ये मैक्रोफेज क्या करेगा, दिस विल एनगल्फ इट, ठीक है, ये इसको एनगल्फ कर लेगा इस बैक्टीरिया को, और फिर इस मैक्रोफेज के अंदर जो लाइसोसोम्स है, ये जो लाइसोसोम है ये इसके साथ मिक्स कर जाएगा, ये कंबाइन कर जाएगा और अपने सारे एंजाइम्स रिलीज करेगा और इसको खत्म कर देगा, इसको मार डालेगा। ठीक है, सो इट एनगल्फ्स और किल्स द पैथोजेंस दैट एंटर्स योर बॉडी। अब मान लो इस बैक्टीरिया की जगह कोई माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, एक पुराना बूढ़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है जिसके अंदर अब वो पूरा फंक्शन अपना नहीं कर पा रहा है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को भी लाइसोसोम्स के अंदर ये एनगल्फ हो जाएंगे, ठीक है, सेल्स, या अगर सेल के जैसे सपोज ये सेल है,
ये न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे एक लाइसोसोम, ठीक है। तो ये लाइसोसोम क्या करेगी, ये अपने सारे एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज करेगी और इट विल किल द और इट विल हाइड्रोलाइज द माइटोकॉन्ड्रिया, कंप्लीटली ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस, ठीक है, और उसके फ्रैगमेंट्स को रिलीज कर देगी इनटू द सेल, बिकॉज उसके फ्रैगमेंट्स में अभी भी कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स होंगे विच विल बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल. So what is the function of lysosome? It will kill, it will destroy the worn out cell organelles. It will destroy the worn out cell organelles. It will kill the pathogens, kill or engulf the pathogens जो कि आपके बॉडी में घुस जाए, जैसे कि बैक्टीरिया. और कभी कभी ये क्या करती है कि ऑटोफेजी, ऑटोलाइसिस भी कर देगी, जैसे सेल को ही पूरी तरह से खत्म कर देगी. मान लो सेल ही बूढ़ा हो गया है, हाँ, सेल अपना मैच्योरेशन एज लाइक लिव कर चुका है एंड इट इज डाइंग आउट. आपके बॉडी में बहुत सेल्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड एवरी मिनट, रादर मेनी सेल्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड आल्सो. तो वो कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? बहुत सारे लाइसोसोम्स, अब एक दो लाइसोसोम्स तो नहीं मगर बहुत सारे लाइसोसोम्स अपने सारे एंजाइम्स अगर रिलीज करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, द सेल, एंटायर सेल एंड द कंटेंट्स ऑफ द सेल विल बी कंप्लीटली डाइजेस्टेड. ओके, तो सेल डेथ का भी काम करती है, जिसको कि एपोप्टोसिस भी कहते हैं. Programmed cell death is also done by lysosomes. So lysosomes apoptosis कर रहे हैं, ऑटोफेजी कर रहे हैं, मतलब अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को खा जा रहे हैं, ठीक है, फिर पैथोजेंस को खा रहे हैं, और इसी तरह से वो सुसाइडल बैग्स का काम करें, जब वो पूरे के पूरे सेल को खा जा रहे हैं, क्योंकि सेल बूढ़ा हो चुका है या खराब हो चुका है. तो जब वो सारे, बहुत सारे लाइसोसोम्स एक साथ अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, पूरे के पूरे सेल के उसके एंजाइम्स जो हैं वो पूरे के पूरे सेल और उसके कंटेंट्स को डाइजेस्ट कर ले, ब्रेक डाउन हो जाए, सेल का पूरी तरह से टूट जाए इनटू फ्रैगमेंट्स, इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, देन इट इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस. इसलिए इनको हम सुसाइडल बैग्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज आल्सो कॉमनली आस्क्ड. नेक्स्ट, कमिंग टू द फोर्थ ऑर्गेनल उसी सीरीज में, जिसे कि हम कहते हैं वैक्यूल. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था प्लांट और एनिमल सेल्स के डिफरेंसेस में, कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में बहुत ज्यादा दिखते हैं, इतने ज्यादा दिखते हैं कि लगता है कि सिर्फ वही मौजूद है सेल में और कुछ है ही नहीं सेल में. एक्चुअली दे आर making around 90% of the volume of a plant cell. Animal cell में होते हैं मगर छोटे छोटे होते हैं, so they are smaller in animal cells. ठीक है, they are smaller in animal cells. इनकी भी एक वैक्यूल होती है, चलो हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों और फिर मार्क कर लेंगे what is important. So vacuoles could be single and as big as in onion cell, मतलब plant cells में बहुत बड़ी होती है. cheek cells मतलब animal cells में छोटे vacuoles होते हैं, ठीक है. large vacuoles are common in plant and animals में छोटे होते हैं. the covering of the vacuole, children this is very important, ये कई बार आ चुका है आपके बोर्ड्स में. what is stonoplast? It is the outer covering of the vacuole, it is called as stonoplast. ये भी single layer की होती है, सिंगल लेयर membrane. ठीक है, द सेंट्रल वैक्यूल, जब ये प्लांट सेल में होती है तो बहुत ज्यादा होती है, इसको हम सेंट्रल वैक्यूल भी बोलते हैं या सैप वैक्यूल भी बोलते हैं कभी कभी, सेंट्रल वैक्यूल या सैप वैक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्यूपाई करती है 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, और इसीलिए न्यूक्लियस वगैरह प्लांट सेल में हम क्या देखते हैं, टुवर्ड्स अ कॉर्नर पाया जाता है. ठीक है, अच्छा, कई तरह के वैक्यूल्स होते हैं बच्चों. कुछ सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम में हम क्या देखते हैं, फूड वैक्यूल पाया जाता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों पाया जाता है. जैसे हमने पढ़ा है ना, जैसे कि ये है, तो ये मैं सूडोपोडिया बनाने की कोशिश कर रही हूँ. सपोज ये अमीबा है और ये उसका खाना है, तो क्या करेगा ये अपने सूडोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को, ये है सूडोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस,
से इसको फूड पार्टिकल को एनगल्फ करेगा और वो अंदर ले लेगा, और यहाँ पे जब वो अंदर ले लेता है तब हम इसे कहते हैं फूड वैक्यूल। और फिर इसे वो डाइजेस्ट कर लेगा। तो डाइजेस्ट कैसे करेगा वो? लाइसोसोम्स है ना, लाइसोसोम्स इसके साथ आके फ्यूज कर जाएंगे और लाइसोसोम्स अपने एंजाइम्स ऐसे रिलीज कर लेंगे। तो लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड्स को भी डाइजेस्ट करते हैं। तो ये फूड के जो है वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और उसमें से वो नरिशमेंट अपने एनर्जी के लिए ले लेगा। ठीक है, तो जब लाइसोसोम फ्यूज कर जाता है किसी और वैक्यूल से, फूड वैक्यूल से, तब वो कहलाता है सेकेंडरी वैक्यूल। ये ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने लाइसोसोम्स के दौरान नहीं बताया था। और जब वो ऐसे ही रहता है प्रेजेंट इन द सेल, बना होता है फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी वैक्यूल। ठीक है, जैसे ये हुआ, दिस हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी वैक्यूल है, क्योंकि अब ये ना तो ये फूड डाइजेस्ट कर रहा है, ना ही बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर रहा है, और ना ही सेल डाइजेस्ट कर रहा है। ओके, और जब वो फूड वैक्यूल के साथ मिल जाएगा या बैक्टीरिया के साथ मिलके अपने एंजाइम्स रिलीज कर जाएगा, तब हम सेकेंडरी वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रेसिडुअल टर्शियरी भी होता है, बट सिंस वी डोंट हैव टू डू ऑल दैट इन डिटेल, तो फिर बताने की इतनी जरूरत नहीं है। तो वैक्यूल्स मैंने बताया दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल सेंट्रल वैक्यूल और या सैप वैक्यूल, जो कि आपको प्लांट्स में मिलता है। फिर कुछ यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम में आपको क्या मिलता है बच्चों? फूड वैक्यूल। ठीक है, जो कि फूड आइटम कंटेन करती है एनिमल, जो कि एनिमल इंजेस्ट करता है और फाइनली वो कंज्यूम कर लेता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स रिलीज्ड बाय लाइसोसोम्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद एक और तरह का वैक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वो भी हम ज्यादातर अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह के यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाते हैं, मेनली फ्रेश वाटर। Many unicelled organisms may have contractile vacuoles, मतलब फ्रेश वाटर जैसे कि यूग्लिना वगैरह हो गया ना, तो उसमें क्या होगा, आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाएगा। मतलब इस तरह से उसको ड्रॉ करते हैं, जैसे ये अमीबा हो गया, तो एक इस तरह का आपने देखा होगा, या इस तरह के छोटे छोटे से ऐसे बनाए जाते हैं, तो इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करके लेबल की जाती है। व्हाट डज इट डू? कभी कभी क्या होता है ना कि ये पानी में रहने की वजह से बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर आ जाता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये फूल जाती है। अगर ये इस तरह की है सपोज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो ये जो है ना ये फूल जाएगी, ऐसे बड़ी हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये पेरिफेरी ऑफ द सेल पे आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन की तरफ आ जाएगी, और फिर ये वाटर को बाहर रिलीज कर देगी। वाटर इज रिलीज्ड, और फिर ये वापस छोटे साइज की हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से जब ये पानी की क्वांटिटी को रेगुलेट कर रही है इनसाइड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा या यूग्लिना हो गए, तो हम इन्हें कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये सिर्फ ना सिर्फ पानी की क्वांटिटी इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन को रेगुलेट कर रही है, बट इससे आयंस का भी रेगुलेशन हो जाता है। ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयंस इनसाइड द बॉडी इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो तीसरे तरह का वैक्यूल है, जो कि कहाँ पाया जाता है, सब जगह नहीं पाया जाता है, बल्कि सिर्फ आपको यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उसका ऑस्मो रेगुलेशन है उसका फंक्शन। दूसरा फूड वैक्यूल का वो काम करती है, जो कि भी आपको यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, और थर्ड जो है प्लांट सेल्स में, जो कि 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो सैप का काम करती है। तो इसके जब वो प्लांट सेल में है तो वो क्या कर रही है, वो एक्टिव स्टोरेज ऑफ आयंस, बहुत सारे आयंस है इसके अंदर, इस यहाँ भी ऑस्मो रेगुलेशन का काम हो रहा है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस हो रहा है। तो बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस मिलेंगे इनसाइड द सैप वैक्यूल या सेंट्रल वैक्यूल, और साथ साथ रेसिडुअल या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे। कुछ आपको वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी मिलेंगे। इट विल आल्सो स्टोर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। ज्यादातर पिगमेंट्स आप अभी पढ़ेंगे या आपने बचपन में पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ा है, प्लास्टिड्स जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, वो स्टोर करते हैं, क्लोरोफिल वहां पे स्टोर होता है। लेकिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट जो होता है, जैसे कि एंथोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का होता है, सॉरी पर्पल कलर की होती है, या पर्पलिश ब्लू, वो रहती है आपके वैक्यूल में।
तो सेंट्रल वैक्यूल आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रही है। और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन सेल वैक्यूल का है कि इट इज इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की साइज बड़ी होती है, तो कैसे साइज बड़ी होती है? ये जो वैक्यूल है ये अपने अंदर पानी भरता जाता है, और जब ये अपने अंदर पानी भरता जाता है तो इसकी साइज बड़ी हो जाती है वैक्यूल की। तो जब वैक्यूल की साइज बड़ी होती है तो इंटर्न प्लांट सेल की भी साइज बड़ी होती है। हमने पढ़ा है ना कि प्लांट सेल इज कंपैरेटिवली बिगर इन साइज एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स, सो दैट्स बिकॉज दे हैव अ बिगर वैक्यूल इनसाइड देम व्हिच इज फिल्ड विद वाटर एंड लॉट ऑफ आयंस एंड सब पिगमेंट्स। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन अब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस का काम उसमें हो रहा है, स्टोरिंग ऑफ मिनरल्स एंड सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का भी काम हो रहा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट सेल्स भी वैक्यूल का एक फंक्शन होता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनल वैक्यूल। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना था, इसलिए एक स्लाइड में मैंने वाइंड अप करने की कोशिश की। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो थी वो मैंने लिख दी है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर मैं आपको लिंक में दे दूंगी। ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको लिंक में पीछे मिल जाएंगे। ओके, तो आज बच्चों हमने कौन से सेल ऑर्गेनल्स देखे? वी स्टडीड अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक जाल जैसा होता है सेल में, जो कि बहुत ज्यादा सरफेस कवर करता है सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस से सटा हुआ होता है, उसी का एक एक्सटेंशन है उसके पास गोल्जी बॉडी। ये बने होते हैं सिस्टर्ने के, वेसिकल के और टिब्यूल्स के, ये दोनों ऑर्गेनल्स बने होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। मेन फंक्शन है प्रोटीन और लिपिड्स बनाना और फिर उनको पैकेज करना, और गोल्जी बॉडी और फिर डिटॉक्सिफाई भी करना। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइसोसोम, जिसको कि डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? डाइजेस्टिव बैग्स भी होते हैं, क्योंकि इनमें जो एंजाइम होते हैं they have the capacity to digest proteins, lipids, fats, carbohydrates, phosphates, sulfates, nucleic acid, सब तरह के मटेरियल को ये डाइजेस्ट कर सकती है, कंपाउंड्स को ये डाइजेस्ट कर सकती है, विच आर यूजुअली फाउंड इन अ लिविंग सेल। तो और जब ये इस तरह से फंक्शन करती है तो ना सिर्फ ये डाइजेशन में काम करती है, बल्कि किलिंग ऑफ द सेल में भी काम करती है। सुसाइडल बैग्स इनको इसीलिए कहते हैं। ये पैथोजन को भी इंजेस्ट करेगी, जैसे बैक्टीरिया या वायरस आ गए मैक्रोफेजेस के अंदर, जो लाइसोसोम्स होंगे वो इसको इंजेस्ट कर लेंगे, या फिर कभी कभी जो वोन और डेड सेल्स होते हैं वो आपको डाइजेस्टिव उसको भी इनगल्फ कर लेगी, ऑटोफेजी उसमें उसे कहा जाता है। देन हमने पढ़ा वैक्यूल के बारे में, जो कि प्लांट सेल्स में बड़ा होता है, 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जिसकी मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। ग्रोथ ऑफ द सेल में काम आती है और ऑस्मो रेगुलेशन में काम आती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉट ऑफ आयंस होते हैं इसमें, फिर कुछ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी इसमें स्टोर्ड होते हैं। फिर हमने देखा कि दो और तरह के वैक्यूल होते हैं जो कि अमीबा या यूग्लिना वगैरह में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसे हम फूड वैक्यूल या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो ऑस्मो रेगुलेशन के काम आता है, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटू द body of eukaryotes. So that was about these organelles. I will come up with the later topics. अब इसके बाद जो बचे हुए हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, प्लास्टिड्स हो गए, तो all that would be taken up in the next lecture that I would be sharing or bringing it on the YouTube. So I hope you would be going through these videos and you would be trying to revise your concepts through this. और जैसे ही lesson खत्म होगा, I would be preparing a questionnaire, एक पूरा आपको PYQs, objective questions के साथ मैं ये पूरा chapter को summarize करूँगी. So hope you enjoyed the video. Do like and keep subscribing it. करो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों में फैले. Okay, and more students are benefited out of it. So thank you very much, children. Bye-bye.